हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आपके साइंस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? यू नो वेरी वेल, खाना कहाँ से आता है, बट हाउ इट रीचेस टू अस, ये हमारे तक कैसे पहुंचता है? व्हाट इज द मीडियम वी रिक्वायर to get this food at home? What did you eat at home today? आपने कुछ खाना खाया होगा। Find out what's your friend at today. आप अपने फ्रेंड से भी पूछो कि आज उसने क्या खाया। So friends, did you eat the same kind of food? Did you eat the same kind of food today? Or is there any different? तो somewhat हो सकता है उसने रोटी सब्जी खाया होगा और आप रोटी तो खाए होंगे, हो सकता है सब्जी मैच नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली। So that is the variety. वो क्या है? Variety. The food is of different kinds. अब यहाँ से पता चल गया आपको, फूड जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? It's various kinds. इसके क्या है? Various kinds होते हैं. So let us do some activities which will help you to understand क्या हम लोग खाते हैं and try to get the difference between that. First of all, इन एक्टिविटी में करना है कि आपको इस वेरी सिंपल शॉर्ट एक्टिविटी का क्या करना है, आपके दोस्त के नेम लिखना है, ठीक है ना, और पर डे मतलब एक दिन में उसने कितना खाना खाया। आई एम नॉट टेकिंग द क्वांटिटी, कितना खाना खाया नहीं, आई एम टेकिंग द वैरायटी ऑफ फूड्स। I'll take the variety of foods that the students has eaten. So somewhat you'll get. So this is the activity first. तो इसमें आपको पता चलेगा कि there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब ये किससे बनते हैं? जो खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, ये किससे बनते हैं? अंडरस्टैंड? तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना, ये चीज समझना है। दिस इज द इंग्रेडिएंट्स बाय विच आर मदर मेक देयर फूड्स। इट्स अ इंग्रेडिएंट द मदर मेक्स आवर फूड। ऑन द अदर हैंड, सो समटाइम्स व्हाट दे विल डू, they will do that. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To get prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो इनको बनाने में बहुत सारे सामग्री, ingredients मतलब सामग्री का यूज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच सकते होंगे वैरायटी, हाउ मेनी टाइप्स, व्हाट आर द वैरायटी ऑफ फूड्स दे आर टेकिंग एंड दे यूज दैट टू मेक वन आइटम। एक आइटम को बनाने में इतने सारे वैरायटी को यूज करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, understand these facts. Choose some of the items you listed. अब जो भी आपने इनमें बनाया होगा, so understand these things. This thing is really very important to understand these things to make everything fabulous. So you activity second में आपको क्या करना है, सेम चीज जो उनके डिशेस हैं
उनके आपको इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है, किन किन चीजों से ये बनते हैं, बाय व्हाट इट इज मेड। सो व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या फाइंड कर रहे होंगे? डू यू फाइंड एनीथिंग? डू यू फाइंड ingredient which is common for different food items? Yes, definitely you will find. You will understand. Discuss in class. So where do these ingredients come from? अब ये सारे ingredients आते कहाँ? It has a common place. Does it has a common place? Of course not. It does not have a common place. It will have some different place. कुछ कहीं से आता होगा, pulses कहीं से आते होंगे, दाल कहीं से आते होंगे, तो ऑयल कहीं से आते होंगे. There is a different things where we get something. So let us see the next thing, that is food materials and the source. It may be easy for us to gauge the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and the vegetable, for instance, figure 1.2a. See the example 1.2 का figure A. So where do they come from? Plant, of course. But what are the source? Or rice, wheat. You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals. Animals भी अब कभी कभी क्या होते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं, और some kind of food we used to get from animals. हम लोग कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स से भी हमको बहुत सारे फूड की प्राप्त होती है. जैसे कि एनिमल सोर्स क्या होगा? So in this chapter we are going to get food कहाँ से आते हैं and what are the types, how it is important for us. So this chapter will deal with these topics. Okay? तो एनिमल भी सोर्स हो गया, प्लांट भी सोर्स हो गया. So there are two sources, एनिमल एंड द प्लांट्स. जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है? एनिमल सोर्स है, और वेज के लिए क्या है? प्लांट सोर्स है. So these are the things by which we are getting different types of food. So let us see the activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. इससे पहले एक्टिविटी फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि फूड उसके आइटम. So the ingredients and the sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to list. इडली हो गया, चिकन करी है, खीर है. There is a lot of things for veg and the non-veg too. So these are the sources of food grains. अब what do we conclude from activity 3? Activity 3 से हम लोग को कुछ मिला. So plant are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and the fruits. Animals provide us milk, meat products and the eggs. Cows, goat and the buffalo are some common examples, some common animals which give us milk. Milk and the milk product like butter, cream, cheese and the curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? जो कि हम लोग को मिल्क प्रोवाइड करते हैं. डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एनिमल्स एज वी फ्रॉम वेयर वी गेट. जो मैमल्स होते हैं डेफिनेटली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो जो मैमल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो इवन ह्यूमन आर द मैमल्स. ह्यूमन भी क्या है? एक मैमल्स है. फ्रॉम वेयर वी गेट फूड. ओके. सो स्टूडेंट्स, later on we'll see the next like plant
parts and animal products as food. ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले वीडियो में। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट गेट द थिंग्स डन बिफोर डूइंग एनीथिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आपको कोई डाउट है प्लीज रीच अस, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। Good morning, friends. So, we are at food materials and their sources. That day I have told you to prepare your list which you and your friend have eaten already. So, this is a procedure where we can utilize our materials to see the things from which our mom made their food. So, it is very easy to understand if you list the table. Now, those who have completed the table, you might know ki what are the ingredients of food, how food can be prepared. So now see 1.2 food materials and sources. It may be easy for us to gauge the source of some ingredients that we listed in table. So most of the ingredients that is made up of, that is given by a plant. So fruits and the vegetable, for instance, where do they come from? Of course, the answer would be plant. What are the source of the rice or the wheat? Of course, you may have seen paddy or wheat field with rows and the rows of the plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. So we have the main source of food is just plant and animals. Plants, tree and animals. So these are the main source of food. So now we'll do the activity. See the read the activity by your own, and in this activity also you'll have to understand about the ingredients of the foods. So let us see the next thing, that is what are the plants and their parts. Already I have discussed this thing earlier. So ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया था इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि फूड का जो मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट, ट्रीज एंड द एनिमल्स. So these are the main source of the food so which we eat. So now the parts of the plants we'll see. Plant are one of the source for our food. Which parts of a plant are these? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots. So कभी कभी क्या होता है, हम लोग, इवन आप लोग भी जानते होंगे ये चीज कि जो फूड पार्ट्स है वो कभी कभी हमारे रूट्स भी होते हैं, कभी कभी लीफ होते हैं, कभी कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी कभी टोटल प्लांट्स को हम लोग खा लेते हैं. So these are the things how we get the food from plants and animals. So these are the things. Now just see the question which is arised by someone. It might be you. Some of you ask the question like Paheli wants to know if any of our food comes from source other than plants and the animals. So अब ऐसा कोई है कि अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई ऐसा सोर्स है जो कि फूड वहां से हमें मिलता है? डू यू फाइंड? सो लेट अस सी द थिंग्स विच दे आर टेलिंग. So we eat
So have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste in the fried right? Some plants have two or more edible parts. अब किसी किसी के पास क्या होते हैं, 2 से अधिक ईटेबल पार्ट्स होते हैं. मतलब लाइक किसी के रूट भी खा लेते हैं और किसी के फ्रूट्स भी खाते हैं. तो 2 हो गए. 2 से अधिक इट मीन्स उसकी स्टेम भी खा लेते हैं. ठीक है. तो किसी किसी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डज नॉट हैव बट मेनी ऑफ देम हैव. ठीक है. बहुत के पास है लेकिन कुछ के पास नहीं है. So these are the things. अब देखो, some plants have 2 or more eatable parts. Seeds of the mustard plants give us oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of the banana? अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, parts. This is the flower. आपको ये this is the homework which I am giving you. आपको homework भी दे रहा हूँ. इसके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है बाय योर ऑन. खुद से आपको ड्रॉ करना है. आई नो यू ऑल आर गुड इन ड्राइंग. सब लोग अच्छे हैं. क्लास 6 में भी जो बच्चे गए हैं ड्राइंग पे, पेंटिंग में, आई नो यू आर टेकिंग टू मच इंटरेस्ट. सो आई एम गिविंग दिस होमवर्क सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज यू कैन इजी अंडरस्टैंड कि पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. So steam, birds, leaf, fruits, you have to keep this all. You have to check this all, and you have to write. You have to draw very neat and clearly. You can draw the pencil and you can sketch that. Okay. So can you think different parts of banana plant that are used as food? Banana plants की बहुत सारे used होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं. Think of more examples where many parts of a single. इसी तरह आपको जो घर में यूज करते होंगे, वेजिटेबल घर में यूज करते होंगे. So there is a lot of vegetable आपके घर में आते होंगे. तो आपको by instance या तो आपको खुद ही पता करना चाहिए. पहली बात, if you are not getting, then try to take help from your father, mother, those who are available at your native, at your home, at your house. Okay. So anyway, let us see. आपको ऐसे भी एक्टिविटी खुद से ही पढ़ना है. और if you are getting any doubts, please let me know. I am not getting any single question from standard 6. 6 से मुझे एक भी क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है. What is this? या तो आप एंजॉय कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, या फिर you are not taking any interest. आप लोग मस्ती करने में ज्यादा लगे हुए हो. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट डू दिस थिंग्स. ये सारी चीजें काम नहीं आएंगे. हो सकता है आने के बाद मैं जस्ट आपके एग्जाम ले लूं तुरंत. क्या क्या मैंने आपको वीडियो भेजा था, एटलीस्ट वो तो कम से कम पढ़ो. ठीक है. एक्टिविटी है वो खुद से पढ़ना है. एंड दिस टेबल जो आपको 3-4 टेबल ऊपर के पहले वाले वीडियो में होंगे, वो सारे वीडियो को ऐसा नहीं कि स्पेस हो जाते होंगे आपके फोन में, तो आपको डिलीट भी करना पड़ता होगा. सो बिफोर डिलीटिंग आस्क योर पेरेंट्स टू स्टॉप एंड यू विल राइट. आप उसको लिख लो, कंप्लीट कर लो, ताकि आपके हो सकता है पापा उनको डिलीट कर दो, स्पेस कम होते हैं इसीलिए फोन में. So I request all of you, before deleting any video, try to complete. वो किसी के पास नहीं मिलेगा, सबके साथ यही प्रॉब्लम है. ओके. सो आपको मैंने टेबल बता दिया. 1.4 तक का टेबल कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है ना. और एक्टिविटी 4 एज वेल एज 5 आपको खुद से पढ़ना है. अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं. सो वी विल सी दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ऑल द बेस्ट. जो भेजा वो, दिस इज योर होमवर्क जो मैंने आपको बताया. ट्राई टू कंप्लीट दिस. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. So students, so last day I have given you the homework that was a drawing. So I have given you
the drawing of the plant parts. So I hope you all have taken good interest in drawing these paintings, but I have also given you the task, write the table for the ingredients. So students, first of all, I would like to know how much you are interested in online study. Whether you are getting something or nothing. Whether is it a positive approach towards your study? Just I want to know your point of view. मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन स्टडी है, क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है? क्या आपको कुछ नॉलेज गेन हो रहा है? कुछ भी या कुछ नहीं? Obviously, some of you, those who are taking interest, definitely they will be in positive direction. जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो तो अवश्य ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और उसको ज्ञान मिलेगा, और जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज इंटरेस्ट लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी. लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी स्कूल ओपन होगी तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है यू कैन ड्रॉ, और एल्स आई कैन ड्रॉ एंड आई विल आस्क यू, एनी ऑफ यू, tell me the name of these things. What is this thing? What is bird? What is stream? What is the leaf? What is roots? So these all things I am going to ask you. So I hope कि आपने एक्टिविटी भी सारी पढ़ी होगी. Now I am going for the next. अब क्या है, आपको नेक्स्ट एक्टिविटी आपको पढ़नी है. I'm going to start. What do animals eat? अब एनिमल खाते क्या है? So student, just listen these all things because while doing the question, अगर आप इन सारी बातों को आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगा. ठीक है? So before that, start doing something. कुछ ना कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टिकटॉक मस्ती कर रहे हैं, घर में बात नहीं सुन रहे हैं, ये सारी चीजें. सो इन सारी चीजों को भूल जाओ. इतना दिन तो मस्ती कर लिया ना फ्रेंड्स, इतना दिन सारी मस्ती हो गई आपकी. इस लास्ट वीडियो में भी मुझे से कोई क्वेश्चन आपकी क्लास से एक भी डाउट नहीं आया क्या? सबको मेरी बात समझ में आ गई? ऑफ कोर्स अच्छी बात अगर समझ में आ गई तो, लेकिन एक बार कम से कम पूछ तो लिया करो, हाँ सर क्या हो रहा है. आई एम नॉट थिंकिंग कि आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई में. चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट. सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या है? मोस्ट ऑफ यू कैन आंसर. सब लोग आंसर दे सकते हो कि एनिमल खाते क्या है. व्हाट दे कैन ईट? Animals like we, human is also animals. Human क्या है? Human is also a form of animals. So he or she or that we can use for the animals too. उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं that. So they can eat plants as well as animals. अब आप बोलोगे एनिमल्स एनिमल्स को भी खाते हैं. डेफिनेटली एनिमल एनिमल्स को खाते हैं. एनिमल्स एनिमल को खा लेते हैं. सो नाउ रीड एज अकॉर्डिंग टू योर बुक. ठीक है? डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? आपके पास होंगे, कैटल होंगे, पेट होंगे, एनिमल्स बहुत सारे हैं जिसको आप
यूज कर रहे हो। सो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि वो क्या खाते हैं? क्या डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about the other animals? और एनिमल्स के बारे में क्या ख्याल था आपके, और वो क्या खाते होंगे? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard and animal, small insect may be eating as their food? छोटे जीव जंतु जैसे आपके स्क्विरल हो गए, गिलहरी हो गए, कबूतर हो गए, छिपकली हो गए और स्मॉल इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो गए, वो क्या खाते होंगे? हैव यू एवर इमेजिन कि उनकी क्वांटिटी क्या होगी, क्या खाते होंगे? आपने मोस्टली केसेस में देखे होंगे। क्या खाते हैं वो? सो अब देखो, बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना? कोई हर्बीवोरस होते हैं, कोई कार्निवोरस होते हैं, कोई ऑमनिवोरस होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे। व्हाट इज हर्बीवोरस? अब सी द एनिमल्स which eat what? प्लांट्स प्रोडक्ट। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। HERBIVORES, हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स भी बोलते हैं इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो हर्ब क्या होते हैं? हर्ब सर्ब आप लोग पढ़ेंगे, छोटे प्लांट, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब सर्ब होते हैं। सो वो जो खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। इसके डेफिनेशन भी आपको मैं बता रहा हूँ। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस। आप लोग लिख लेना है इसको डेफिनेशन, ठीक है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स and their product is called herbivores. Next, carnivorous. The animals which eat other animals is called carnivorous. Omnivorous. The animals which eat both animals as well as plants products is called omnivorous. So students, ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। व्हाट यू नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोरस इन नोटबुक। और ये जो एक्टिविटी आपको 6, 7, 5, 4 जितने भी है इसको भी फिल करना है आपको नोटबुक में। सारे एक्टिविटी नोटबुक में फिल हो जाने चाहिए आपको, ठीक है? ज्यादा आपको होमवर्क भी नहीं मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी, ताकि आपकी घर में जो एक्टिविटी होती रहेंगे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और एक्टिविटी भी होती रहेंगे। जितना एक्टिविटी करोगे उतना नॉलेज आपको गेन होंगे। सो ट्राई टू गेन दिस थिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज अ मनी फॉर ईच एंड एवरीवन, नॉट फॉर यू। आपके लिए ही नहीं, टाइम सबके लिए उतना ही महत्व रखता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? फटाफट नोटबुक निकालो और सारे होमवर्क कर डालो, तब जाके खाना खाना आप। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much. We'll see in the next video. Good morning students. So last class हम लोगों ने पढ़ा था how the photosynthesis occurs in plants. Plants में photosynthesis कैसे होते हैं? So
students, just I want to ask one thing. Are you following the online structure which are you seeing? It's a very important for you while seeing the video, note each and everything. क्या जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो यू हैव टू बी सिंसियर. आपको क्या करना पड़ेगा? सिंसियर रहना पड़ेगा. So just I want to ask one thing. What happens if photosynthesis does not occur in a plant? What is the reason behind the photosynthesis? सोचो कि रीजन क्या हो सकता है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस अगर किसी प्लांट में नहीं हो रहा है तो हाउ, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? कैन यू राइज अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? कैन यू इमेजिन बाय योरसेल्फ कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? What can be the reason? What would be the reason behind it? कैसे हो सकता है रीजन? फोटोसिंथेसिस नहीं होने का या होने का फिर क्या रीजन है? आपने कभी नहीं सोचा होगा ये सारी चीजें. Why? Because most of the time you just give in wasting. Anyway, so जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, so the next होमवर्क आपके क्या है? आपको डायग्राम बनाना है where it is showing कि photosynthesis is happening. photosynthesis happening हो रहा है, it means कि plant definitely have the green leaf. क्या होंगे? प्लांट में ग्रीन लीफ होंगे, तब जाके फोटोसिंथेसिस अकर्स होगा. So beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants in green system and green branches. The desert plants have scale or the spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. क्या होता है? ग्रीन स्टीम विच अकर्स फोटोसिंथेसिस. सो जैसा कि लीफ में ही नहीं होता सिर्फ फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन इट हैपेंस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ग्रीन लाइक ग्रीन स्टीम भी होते हैं सम ऑफ द प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे हैव द ग्रीन स्टीम्स. सो इट अकर्स एट द स्टीम ऑल्सो. It always occurs at the stem also. So during what happens during the photosynthesis? photosynthesis के टाइम में होता क्या है? First of all, how it occurs? I have told in the last video, previous video में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि photosynthesis occurs होते कैसे हैं. It happens due to the chlorophyll. It happens only those plants where the chlorophyll occurs. The cell which contains the chlorophyll, definitely there would be the photosynthesis arise. It arises only where the photosynthesis. It depends upon the photosynthesis only the chlorophyll. The presentation of chlorophyll deals with the photosynthesis. Okay, so what happens? So in the presence of sunlight, use carbon dioxide and the water to synthesize carbon dioxide. The process can be presented as an equation. So see the equation. Equation कैसे हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 plus H2O, and in the presence of sunlight, it forms
glucose. So during the process oxygen is released. क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होते हैं. So the carbohydrates ultimately get converted into starch. ये जो starch है, this is the formation of energy. So the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. मतलब अगर किसी भी लीफ में अगर स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है तो इट शोज कि फोटोसिंथेसिस वहां हुआ है. द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट्स. इट इज ऑल्सो एनर्जी. इट्स ऑल्सो एनर्जी. इट अकर्स ओनली व्हेन द क्लोरोफिल get in touch of water and the carbon dioxide in the presence of sunlight. Do you get this thing? अब देखो इसके डायग्राम आपको बनाना है. सेक्शन बी के भी आपको डायग्राम बनाने हैं और सेक्शन सी के स्टोमेटा का भी डायग्राम बनाने हैं. इन तीनों का डायग्राम आपको क्या करना है होमवर्क में. सिमेट्रिक डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस एंड नोटबुक में सारे डायग्राम कंप्लीट हो जाने चाहिए. ओके. एज वेल एज आपको क्या करना है एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है हाउ द थिंग्स कैन हैपन. कैसे कैसे क्या हो रहा है. अब क्या करना है इन एक्टिविटी में आपको. इट्स अ वेरी इजी एक्टिविटी विच ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट कैन डू इन देयर नेटिव. अब क्या करना है देखो अगर फोटोसिंथेसिस अकर्स हो रहा है किसी भी प्लांट्स में तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. तो इन फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर अ फ्यू आवर्स जस्ट हम क्या करेंगे उस प्लांट्स के पत्तों को स्टॉप कर देंगे. बट स्टॉप कैसे करेंगे. कैन यू इमेजिन दैट थिंग्स. वी कैन इमेजिन ओनली. So I am telling the things how we can stop this. So आपको करना क्या है. So you have to do these things that जो भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं. अब प्लांट्स के पत्तों को क्या करना है आपको. We can cover. एक ब्लैक मटेरियल से इसको क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे. कवर करने के बाद पूरा एक दिन इसको छोड़ देंगे. ठीक है. और छोड़ने के बाद अब अगले दिन देखेंगे जो प्लांट्स के पत्ते हैं आपके वो क्या हो रहा है कलरलेस हो जाएंगे. जो ग्रीन कलर है हो सकता है आपको किसी किसी के येलो हो जाए किसी किसी के ब्लैक हो जाए. सो स्टूडेंट्स ट्राई टू डू दीज एक्टिविटीज. ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और ट्राई टू कंप्लीट दीज थिंग्स. सो दैट इज वाई इट शोज कि इट कैन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर्स. दिस विल शो दिस थिंग्स. दिस विल शो दिस थिंग. ओके स्टूडेंट्स. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स try to find out, try to take help from me, try to get in touch with me. I always will help you. Do not worry, don't be hesitate कि हाँ सर से पूछेंगे या फिर कैसे पूछेंगे. No one. I am not getting any calls from you guys. I don't think कि आपको डाउट भी हो रहे हैं. So try to ask these questions from me. Okay, अगर कोई डाउट है तो. Anyway, we'll see in the next video. Thank you so much.